Hi everyone, welcome to you all to my channel One Stop IT Prep. I hope all you are good and preparation is also going very good. So today I will be discussing about one more technical things for SBI SO Assistant Manager exam point of view. So today I will be discussing some question patterns from operating system. So it is very much important from a exam point of view. So please stay tuned to my channel. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel, watch all the videos. So I have created a dedicated playlist SBI SO preparation for all of you. Both assistant manager and deputy manager all can see this playlist. There are videos for all. So I can see some people are keep questioning some of the common questions. So I will request to everyone, please go through these videos first, and after that most of the doubts will be cleared. And after that, if any doubts you are having, please comment. I will be there to help you. Okay, so let's start for today's session. Okay, so first question. A process executes the code for I equals to 1, I less than equals to 3, I plus plus. Fork. The number of new process created is dash 64, 63, 16, 15. I am taking a pause. Please try first. ओके, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये जो फॉर्क मेथड है, फॉर्क मेथड जब भी एग्जीक्यूट होगा दो प्रोसेस आपको क्रिएट होता है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। ठीक है, अब देखना होगा कि फॉर्क कितने बार हमको कॉल हो रहा है। अब एक चीज देखो, ये जो फॉर लूप है इधर कोई आपका ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब फॉर लूप के बाद फर्स्ट लाइन बाय डिफॉल्ट लूप में लेगा, सेकेंड लाइन जो है ये लूप के बाहर लेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये फॉर लूप में 3 बार एग्जीक्यूट होगा, और जो लास्ट मेथड है ये टोटल 4 बार एग्जीक्यूट होगा। तो देखो, तो एन टाइम्स अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपका टोटल प्रोसेस बनता है 2 टू द पावर n-1। ठीक है, तो टोटल हम देख लिए कि 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो टोटल कितना बन रहा है 2 टू द पावर 4-1, मतलब 15 टाइम्स। तो यही है टोटल आपका चीजें। तो ऑप्शन विल बी 15। अच्छा, next question. Which of the following are not shared by threads of same process? Stack, register, address space, message queue. ऑप्शन में मिक्स एंड मैच करके ऑप्शन दिया है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो देखो इसका आंसर क्या है। थ्रेड शेयर कोड एंड डेटा सेगमेंट्स एंड द हीप, बट दे सॉरी, थ्रेड्स क्या क्या शेयर करते हैं, कोड एंड डेटा सेगमेंट्स। ठीक है, बट हीप को ये नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, तो इससे जो होगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। At a particular time of computation, the value of counting semaphore is 7. Then 20 P operation and X V operations are completed on this semaphore. If the final value of the semaphore is 5, X will be how much? तो देखो, ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या जानना है। जो ये P मीन्स वेट सिग्नल एंड V मीन्स आपको सिग्नल। P जब होता है तब माइनस होता है, V जब होता है तब प्लस होता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 7, इससे 20 P ऑपरेशन होगा, मतलब 7 से 20 माइनस होगा, एंड एक्स भी ऑपरेशन होगा, मतलब x प्लस होगा। रिजल्ट इक्वल्स टू 5, तो इससे आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो 7 - 20 + x इक्वल्स टू 5, तो ये कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा 18। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन डेडलॉक से है। कंसिडर अ कंप्यूटर सिस्टम having n resources of the same type, and these resources are shared by 4 processes that have maximum demands 5, 4, 3, 6. Then for what maximum values of n the system will be deadlock? 15, 14, 12, 13। तो देखो डेडलॉक कब होता है, जब प्रोसेस जो चाहता है वो रिक्वेस्टेड रिसोर्स से कम होता है। ठीक है,
तो और फॉर्मूला क्या है, मैक्स रिसोर्स पर प्रोसेस टू बी इन डेडलॉक इक्वल्स टू मैक्स डिमांड माइनस वन। तब फोर प्रोसेस जो है, मैक्स वैल्यू ऑफ एन टू बी इन डेडलॉक क्या होता है, फास्ट डिमांड क्या है 5, तो 5 - 1 प्लस 4 - 1 प्लस 3 - 1 प्लस 6 - 1 इक्वल्स टू 14। ये दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग, which of the following statements are true? Shortest remaining time for scheduling may cause starvation. Cryptic scheduling may cause starvation. Round robin is better than FCFS in terms of response time. One only, one and three only, two and three, one, two, three. तो देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, लॉन्ग प्रोसेस बाद में। तो ऐसा हो ही सकता है कि लॉन्ग प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ना हो। तो दिस इज ट्रू, प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी एक प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग है, तो टू इज ऑल्सो ट्रू। एंड राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस, हाँ राउंड रॉबिन भी है। ठीक है, तो आंसर इज ऑल। With scheduling process, which of the following controls the degree of multiprogramming? Process control block scheduler, long-term scheduler, CPU scheduler, short-term scheduler. तो इसका आंसर होगा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अच्छा आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है गैंट चार्ट से। Consider the following three processes with the arrival time and CPU burst time given in milliseconds. Process दिया गया है, arrival time, burst time दिया गया है। Gantt chart for primitive SJF। देखो SJF बोल दिए बट प्रीमटिव करके बोल दिए, तब मतलब इसका होगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एक्चुअली। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपको इसके लिए देखो गैंट चार्ट देखो, ऐसे गैंट चार्ट बनेगा। तो जीरो, जीरो में कौन आया है सबसे पहले, जीरो में सबसे पहले आपका P1 आ रहा है, तो फास्ट P1 ही होगा। तो सबके लिए फास्ट इसका है आपका P2, तो ये नहीं होगा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 पहले ही क्रॉस हो गया, अब ऑप्शन 1 2 3 बचा। तो ठीक है, जीरो से फर्स्ट आपका P1 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ, 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका बर्स्ट टाइम 7 से घट के 6 हुआ। अब 1 सेकेंड में क्या क्या P2 भी आ गया है, P1 का 6 बचा है, P2 का 4 बचा है। तो कौन एग्जीक्यूट होगा, अभी सबसे कम कौन है, P2 है, तो P2 एग्जीक्यूट होगा। तो देखो 0 से 1 हो गया, अब P2 आने लगा है। तो P2 मान लो 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ, तो P2 का बचा कितना 2, और 2 टाइम में P3 आ गया, P3 का 8 है, तो P2 अभी भी कम है, तो P2 क्या होगा, पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा। तो एक से टोटल 4 मतलब 5 सेकेंड तक P2 एग्जीक्यूट करेगा। देखो P2 एग्जीक्यूट कर लिया। अब 5 टाइम के बाद P1 का कितना बचा है, 6 बचा है, और P3 का 8 बचा है। तो P1 कम है, तो P1 अब एग्जीक्यूट होगा। 6 बचा है, तो 5 + 11 इक्वल्स टू P1 हो गया। उसके बाद आपका P3 एग्जीक्यूट हुआ 19। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी है यही हो गया टोटल ऑप्शन। अब इसका कुछ काउंटर क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके का आ सकता है, आपको बोल सकता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बोलो इस प्रोसेस का, या वेटिंग टाइम बोलो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक ऐसे एटीबीटी के साथ एक टीएटी, टोटल टर्न अराउंड टाइम। टोटल टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1, पी देखो हमारा ऑप्शन होगा ये, तो P1 तक कंप्लीट हुआ है 11 में, और 80 क्या है इसका 0, तो इसका 11 होगा। P2 कंप्लीट हुआ है 5 में, 80 था 1, तो 5 - 1 4 होगा। P3 कब कंप्लीट हुआ है 19 में, और 80 था 2 मतलब 17। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब वेटिंग टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम से अब बर्स्ट टाइम माइनस करोगे, तो ये इसका वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब एवरेज करने बोलेगा तो क्या होगा, टोटल 3 प्रोसेस है, तीनों को ऐड करना, डिवाइडेड बाई 3 करना। वेटिंग टाइम अगर एवरेज बोलता है तो टोटल
वेटिंग टाइम को ऐड करना डिवाइडेड बाई 3 करना। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे गांट चार्ट एंड एक टेबल, ये आप अगर निकल लोगे तो इधर से जो भी क्वेश्चन आपको देगा यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, अब देखो और एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन। प्रोसेस दिया है सीपीयू बर्स्ट टाइम, assume that the process are being scheduled with round robin scheduling with time quantum 4 ms, then the waiting time for p4 is। तो देखो, इसका राउंड रॉबिन बोला है। राउंड रॉबिन में आपको क्या करना है, आप एक पहले एक टेबल बना लो। 0 to 4 बनाओ फर्स्ट क्वांटम। तो अच्छा, इधर कोई अराइवल टाइम नहीं दिया गया है, तो हम सोचेंगे कि एवरी प्रोसेस आर इक्वल। तो 0 to 4 सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये पहले है। इसके बाद 4 to 8 में P2 एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, 0 to 4 में P1 एग्जीक्यूट हुआ, 5 था, 4 एग्जीक्यूट हो गया, तो रिमेनिंग कितना है, 1। ये आप मतलब मैं कंप्यूटर में दिखा नहीं सकता हूँ, आप खाता में जब रफ करोगे तो 5 को क्रॉस करके 1 कर देना, तब नेक्स्ट टाइम आप सही वैल्यू निकाल पाए। अब P2 भी एग्जीक्यूट होगा, बचेगा कितना, 3। फिर P3 भी एग्जीक्यूट होगा, बचेगा कितना, 2। P4 एग्जीक्यूट होगा, कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, तो 0। तो टोटल फास्ट आपका 16 टाइम तक P1 P2 P3 P4 हो जाएगा। हो गया आपका। फिर P1 का कितना बचा था, 1 बचा था, तो इसलिए 16 to 17, दो इट्स टाइम ड्रॉप ऑफ 4 सेकेंड, बट उतना तो बचा ही नहीं है, तो नहीं जाएगा, 17 तक आएगा। P2 का 3 बचा था, इसलिए 20 तक गया। P3 का 2 बचा था, 22 तक गया। आप कैसे पता करोगे कि आपका गांठ चार्ट सही है कि नहीं, तो एक तरीका है कि इस टोटल बार्स टाइम को ऐड करना, और आपका जो एंडिंग है ये भी सेम होना चाहिए, ऐसे एक पता होना चाहिए। अच्छा, क्या बोला है, वेटिंग टाइम फॉर P4। तो देखो P4 कब मार्केट पे आया है, 12 सेकेंड पे, तो इसका वेटिंग टाइम होगा 12। ऐसे करके आप बोल पाओगे। ठीक है। अच्छा, in which of the following page replacement algorithm it is possible for the page fault rate to increase even when the number of allocated frame increases, LRU, optimal, MRU, FIFO। तो देखो जनरली क्या होता है, हम अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करता है तो पेज फॉल्ट डिक्रीज होता है, बट बिलाडीज नॉर्मली बोलते हैं अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज होगा तो पेज फॉल्ट इंक्रीज होगा, एंड FIFO follows this Biladi's anomaly, so answer will be FIFO। okay, okay, so in this part I am discussing only these questions related to ACE. In the next part I will be discussing some more questions from paging। okay, so I hope this is a important useful session. Please comment in the videos how you like this session. Okay, thank you.